Good morning, India, and welcome to the world. A beautiful day today. So let's make it even more beautiful. And ask me why, dear friends? We have a wonderful celebrity with us, an unsung hero, a person who would like to share her journey, her expertise on this platform called as the International Fab Talks, where we connect with all the unsung heroes, the commoners who have given their very best and continue to give their best today and for the future as well. So, dear friends, I'd like to invite today our special celebrity. She is Dr. Meghavi Shah. Dear ma'am, welcome to the session. Thank you so much, Crystal, to inviting here in this beautiful pep talks. Thank you, ma'am. Dear friends, do you know who is Dr. Meghavi? She's that person who is also called as the emotional freedom coach, where she focuses on creating a beautiful you, making you unable to manage your emotions. If you're not able to manage your emotions, everything goes wrong right from the start of the day till the moment you put your head down to bed. So she is a beautiful coach who makes you understand that yes, emotions could be controlled in the right way. There are certain techniques and tips which she's working on. She's been working with several of them. Dear ma'am, thank you for accepting the invitation to the International Fab Talks. Thank you so much, dear. You're most welcome. Thank you. We really feel very happy when somebody accepts our invitation and say, yes, we could make a difference in the lives of others. We could inspire people across the globe. And today our celebrity has joined us today. It's our duty now to introduce her in an official way, friends. Dear ma'am, I'm going ahead. Yes, definitely. Yes, dear. Thank you, ma'am, for that. Thank you very much. Yes, dear friends. Yeah. So I just put that on the right mode. Yes, dear friends, we are here today connected with our special celebrity. She is Dr. Meghavi Shah, a person with lots of patience, and I'll explain to you why in the later part of the session. She's been so kind and passionate, and she is also called as an abundance happiness coach on a beautiful mission to empower women across the world, to transform their journey and make them more capable of managing their lives, to enable them to understand the transformative journey towards emotional well-being and inner peace. If you have that inner peace, emotional well-being, your journey on this beautiful path of life will really be beautiful and fruitful as well. Over the past 5+ years, Madam has been having the privilege and the power to guide more than 300+ women across India through her intricate path of forgiveness, self-love, serenity, helping them to discover their inner self, the profound joy, the great joy that comes from within, embracing their own abundance. So everybody is unique. Everybody has the power within them. Only somebody has to let you know that how to tap it out, how to remove that beauty which the universe has given you, which the Almighty has blessed you with. And today, our guest, that is Dr. Meghavi, she will enable us to understand how you could enjoy your emotional life and balance it in the right way. And friends, apart from this, she's also been contributing a lot and empowering people to develop a unique set of 10 healing methods, which she's really contributed very well, and she has empowered her clients. Whoever have come to her, she has made them understand that they could empower themselves by following this beautiful 10+ healing techniques and tools which she has developed for all of us. And friends, through her expertise and practice like emotional freedom technique, positive self-talk, and Ho'oponopo, if I'm getting that right. Ma'am, am I getting that right? Yes, Ho'oponopono. Ho'oponopono. So thank you for helping me. Ho'oponopono is one of the beautiful techniques, mudras, meditation, much more. And she has witnessed from her work, she has witnessed beautiful, remarkable transformations in the lives of all those clients, all those people with who she had the honor, the privilege to work with and create a beautiful space for them. And today she would love to create that beautiful space for you and for me on how we could release the suppressed emotion within us, how to have that balance in our emotions, and how we could connect with others, bond with others, and build a beautiful world in the family and across the globe. Hello, ma'am, and welcome to the session, dear. Hello. Hello, Crystal. How are you? Thank you. I'm really fine, ma'am. And thank you for being so polite as you gave us some time. Actually, the session was prolonged and I had to request, ma'am, would you be able to manage and balance the time? She was very polite and she agreed. So that makes her extra special. I'd like to thank her for that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
Dear ma'am, we start up with the first round of the interview. Yes. How would you define yourself? Who is the real Meghavi? तो आइडियली रियल मेघावी इज वेरी नॉर्मल गर्ल, जो शायद ऐसा ही समझती थी पीपल प्लीजर इज वेरी गुड, saying no is not good. Yeah, and very much because of that people pleasing, always Meghava is being frustrated and angry. Okay, so this is my journey begins before the emotional freedom. और उसके बाद मेघावी में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आफ्टर दिस यूनिक टेक्निक्स एंड टूल्स एंड आफ्टर आइडेंटिफाई कि इमोशंस बुरे नहीं होते हैं. ओके हम समझते हैं गुस्सा बुरा है, फ्रस्ट्रेशन बुरा है, गिल्ट बुरा है, बट मेरी जर्नी ने मुझे बताया है अच्छा है कि हमें इमोशंस है. इसी से हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर कुछ है जिस पे हमें काम करना है. और आज ये मेघावी को वो समझ में आ गया है और वो चाहती है और लोगों को भी समझाए. बढ़िया मैम, बहुत खूब, बहुत खूब. आई रियली लव द वे यू पुट दैट. बीइंग अ पीपल्स प्लीजर, लोगों को खुश करना, ना नहीं बोल सकना, नॉट एबल टू टेल नो, तो हमेशा हाँ जी बोलना, तो ये सही नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड कि कब ना नहीं बोलना, व्हेन टू से नो, एंड नॉट टू बी अ पीपल्स प्लीजर. Yeah. That's really very nice. Thank you so much ma'am for sharing all of that. I really like the way. तो मैंने सीखा, मैं दूसरों को भी सिखाना चाहूंगी. तो ये सबसे बड़ी बात है, to empower yourself, empower others. So Yes. all of you, my dear sisters and brothers out there, empower yourselves like this, such that you could inspire millions of others across the world. जी मैम. I also believe, yes, I also believe कि जो चीज हम शायद सीख लेते हैं बट उसके बाद ये शेयर नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं वो धूल मिट्टी लग जाती है. इफ यू आर शेयरिंग अदर्स तो वो कहीं ना कहीं वो मोर पावरफुल हो जाती है, वो मोर इम्बॉडीमेंट हो जाती है और आप वही एनर्जी फिर बन जाते हो. सो आई फील कि जो हमारे साथ हुआ है, जिसने हमारी जर्नी को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, वी जस्ट शेयर ईच एंड एवरी पर्सन. यस, डेफिनेटली. Yes. Thank you so much मैम, thank you very much. मुझे क्या खास बात क्या है मैम, मैंने सीखा, I overcame all of that, overcoming, being a people's pleaser, overcoming, trying to say no. So then when I see these beautiful things in you, you become an inspiration to me. Yes, we all should Yes. learn that. When to say Yes. no and to stop making people happy, the wrong ones, especially the wrong ones. तो हमारे लिए तो आप इंस्पिरेशन बन चुके, शायद दूसरे लोगों के लिए भी आप इंस्पिरेशन हो और होंगे भी, लेकिन आपका इंस्पिरेशन कौन है मैम? आप इसमें कैसे इंस्पायर होके इस ब्यूटीफुल फील्ड में आ चुके हैं, बीइंग एन इमोशनल कोच, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कोच, और यू कुड से एन अबंडेंस हैप्पीनेस कोच. How did you enter into this field? So how many, like so many situation I have जहाँ पे मुझे ये situations एक के बाद जब होती रही, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मैं ये situation से बाहर आऊं. And second, maybe you all don't know about me that I am also Ayurveda practitioner. ओके सो मैंने ये पास आउट किया है 2008 में, तो लास्ट 15 इयर्स से मैं आयुर्वेदा की जर्नी में हूँ. सो ये जो मैंने बताया मैं 5 साल से हूँ, पर पहले जब मैं आयुर्वेदा की जर्नी में थी तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स जो अपनी जर्नी को पूरा अपने, जैसे आप जानते हो कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर तो वहां पे वो अपना पूरा वेंट आउट करते हैं और तब समझ में आता है कि फिजिकल लेवल पे तो बीमारी कम है, ज्यादा बीमारी शायद इमोशनल लेवल पे है. शायद हम वो इमोशनल सपोर्ट उनको दे पाए तो फिजिकल लेवल तो बहुत ही जल्दी उनका ठीक हो जाता है. तो सिमिलर ये एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हुआ व्हेन आई एम वर्किंग विद वन ट्रस्ट, जैन ट्रस्ट. वहां पे आई हैव अ ओपीडी ऑफ 25 प्लस पीपल. तो लोग आते थे, इवन तो मेरे साथ शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बिकॉज द ट्रस्ट इज द स्पेस जहाँ पे लोग एक दूसरे से बहुत ब्यूटीफुली बात करते हैं और शेयरिंग करते हैं. तो वो शेयरिंग और वो सब चीजें जब मैंने कंटिन्यूअसली यूटिलाइज की, देखी, समझी, तब मुझे समझ में आया और मैं कंटिन्यूअसली एक आस्क में थी कि मैं मेरी यूनिवर्स में ऐसा क्या ऐड करूं जिससे उन लोगों की इमोशनल हेल्थ पे मैं वर्क कर सकूं. इवन दो आयुर्वेदा मन चिकित्सा के बारे में बहुत सारी डिप समझाता है, बट मुझे फिर भी लगा कि कुछ ऐसा एड ऑन होना चाहिए जो सिंपल हो, इजी हो
और वो अपने आप भी कर सके, ना ही उनको डेफिनेटली कंटिन्यूअसली एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े या मेडिसिन की। एंड देन इवन दो माय सन, जो एक्चुअली जब जब से वो पैदा हुआ था, ऑलमोस्ट स्कूल की जर्नी में गया, पीपल यानी स्कूल में टीचर्स एंड ऑल यूज्ड टू से मी दैट इज ही इज एडीएचडी चाइल्ड, एडीएचडी। एंड आई फील दैट एडीएचडी यानी बहुत बड़ी बीमारी है, एंड वी हैव टू ओवरकम इट, एंड हमें कुछ करना चाहिए, एंड आई एम यूज्ड टू क्राई। और जब उसको ये जर्नी में आने के बाद, बीइंग अ इमोशनल फ्रीडम कोच, होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर एंड हिप्नोथेरापिस्ट एंड एवरीथिंग व्हिच आई लर्न आफ्टर लास्ट इन 5 years, तब मुझे पता चला कि एडीएचडी तो एक मैजिकल क्रिएशन है उसकी बॉडी, उसकी रियलिटी में, जो उसको बहुत आगे लेके जा सकता है जब वो उसको यूटिलाइज। तो दीज आर सम सिचुएशंस जहाँ पे मुझे समझ, हम मेरा तो था ही, इवन तो इमोशनल इम्बैलेंस, even though being a people pleaser and can't able to say no, बट मैंने मेरी जर्नी में बहुत सारे लोगों का ये देखा, और मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जहाँ पे मैं इमोशंस पे काम कर सकूं। एंड देन मेरी यूनिवर्स में ये सब चीजें लैंड अप होती रही, और उसको मैंने यूनिक वे से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। Yes, dear. Thank you for sharing your beautiful journey, ma'am, as to how you entered into this. बहुत खूब आपने शेयर किया, opened up कि भाई इसमें छुपाने की कुछ भी नहीं है, तो है सो सच। तो फैब टॉक्स इज ऑल अबाउट ट्रूथ, दैट यू Yes. शेयरिंग एवरीथिंग ओपनली, ताकि दूसरे कॉमनर्स भी समझे कि भाई दिस इज लाइफ, जिंदगी यही है, गिरना और फिर उठना और फिर सामना करना हर एक चीज का। That's really nice. So as ma'am shared with us today, how to face life, not to give up, to develop your strengths. Yes, dear. तो मैम ये जो ADHD है, आपने आपने कहा था, उसका फुल फॉर्म आई वुड लाइक टू नो। So ADHDs nowadays, so many kids are with that empower, like that power. ADHD is about the attention deficit hyperactive disorder या deficiency, whatever you can say. Okay, so it is about कि बच्चे आजकल की बहुत hyper active है। से लाइक अब आप उनको कुछ भी काम नहीं दोगे तो दे यूज्ड टू से मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यानी कंटिन्यूअसली यू हैव टू गिव समथिंग 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 समथिंग। एंड इन स्कूल इफ टीचर आर नॉट एबल टू गिव समथिंग, तो दे आर डूइंग समथिंग मिस्चीवियस, so they are not able to handle it, so that complaints and all hit me a lot, because आप समझ सकते हो जब एक मम्मी को उसके बेटे के बारे में कंटिन्यूअसली कंप्लेन्स आ रही है, सो इट इज हिट अ लॉट। और वो मेरी जर्नी में, यानी मैं, आप जब पूछ रहे हो ना आपके लिए मोटिवेशन कौन है, मेरे लिए मोटिवेशन भी मेरा बेटा है, और मेरा स्टार्टअप भी मेरा बेटा है, क्योंकि उसकी वजह से मैंने ये सब चीजें स्टार्ट करी। बेसिकली पेशेंट्स के लिए था ही, बट जब वो बच्चे के लिए आता है तो ऑब्वियसली मदर को ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ करना है, अभी तो कुछ करना है, लाइक दिस। तो तब मुझे, जब मैंने स्टार्ट करा जर्नी को 2017 के आसपास, आई एम जस्ट फाइंड आउट कि कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि मेरे बच्चे का एज तब 5 years का हो चुका था। एंड द एडीएचडी किड का आप एक बैलेंस लाइफ नहीं क्रिएट करते हो, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते, तो बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है आफ्टर 5th-6th एज के बाद। तो क्या हो जाता था, उसके बिहेवियर में चेंज आने लगे, एंड इट्स अगेन हिट मी अ लॉट कि अभी तो मुझे कुछ करना है। बट मैं अभी ऐसा बोलती हूँ कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड विद दैट किड, कि आज उसकी वजह से आज मैं ये जर्नी में हूँ, और ये जर्नी के बाद मैं कितनी सारे लोगों को ये कंट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ। सो इट इज गिविंग मी आल्सो द गूज़बम्प्स जब भी मैं बोलती हूँ कि माय सन इज फॉर मी इज इट लाइक मैजिक। आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माय सन, कि जब मैं उसके लिए ही रोती थी, आज उसके लिए रोती हूँ, but with the blessings ke yaar I have this, like this. Yeah. Perfect, ma'am, perfect. It's really so nice to share, and you're giving us also the goosebumps. Yes. That's really nice. Dear friends, have you seen, आपने देखा कि भाई इतनी अच्छी तरीके से मैम ने एक्सप्लेन किया कि my son is my inspiration, my son is my role model. आज खुशी के आंसू आ रहे हैं, है ना? Yes. Definitely. 100%। मैं अभी भी मेरे हर एक स्टूडेंट को, हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ कि आज ये जर्नी में मैं हूँ तो शायद उसकी वजह से हूँ। शायद वो 1 साल का, 2 साल का था, तो मे बी अंडरनीथ ये मेगा भी ऐसा सोचती थी, यार व्हाई आई एम हियर विद दिस किड, ऑलवेज डूइंग नॉट लाइक, सुनता ही नहीं है, करता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। बट नाउ डेज आई अंडरस्टूड कि
एक तो वो चीज तो मुझे समझ में आ गई कि यस, मुझे आज ये जर्नी चूज करनी थी, तो ही इज द, वो बोलते हैं ना, एक बीज था, सीड था, कि उसने सिर्फ वो सीड डाला, अभी उसके बाद मैं ग्रो हुई हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जब मुझे समझ में आया उसकी रियलिटी को समझते समझते, कि समवेयर आई एम ऑल्सो द एडीएचडी एंड आई एम ऑल्सो द यूनिक किड ऑफ द यूनिवर्स, कि जहाँ पे मुझे ही अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। तो ये जब मुझे समझ में आया था, देन आफ्टर दैट आई ऑलवेज यूज टू से ईच एंड एवरी पर्सन कि यू आर यूनिक, नो वन इज अबव यू, नो वन इज बिलो यू, everyone is unique and you have to identify your uniqueness। जब आप ये कंपैरिजन में से बाहर आके ये यूनिकनेस में आ जाते हो ना, आपकी लाइफ में वैसे भी हैप्पीनेस आ जाती है। So that's why I always feel like we are abundance happiness coach, as well as if we are balancing our emotions and if we are actually embracing our uniqueness। यूनिकनेस कुछ भी हो सकती है, आपकी स्माइल भी हो सकती है, यूनिकनेस कुछ भी हो सकती है। आप सिर्फ एक बार सुनना भी चालू कर दो ना किसी को बैठ के, तो भी वो आपकी यूनिकनेस है, इफ यू आर गुड लिसनर। So that is also the so many people around the world who are actually willing to vent out so many things। They are not looking for the solutions, और आपके बोलते हैं ना, आपकी सलाह की उनको जरूरत नहीं है। They just wish to sit behind you and just vent out। So yes, I always used to say uniqueness each and every person has, just embrace it and just acknowledge it। Yes। Perfect, ma'am. Perfect. You really made me feel good today by sharing all of this. That's really nice. All of us are unique, my friends. And seeing the uniqueness in others, accepting others is all about life. Yes। Yes, dear. I really like that, कि भाई कुछ लेना नहीं है, बस किसी कोई हमारे बात सुने एंड कोई समझे, कोई अच्छे लिसनर हो तो हमको शेयर करनी है। हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड फेम, वी डोंट नीड रिवॉर्ड्स, वी नीड पीपल टू अंडरस्टैंड, वी नीड पीपल टू अंडरस्टैंड आवर ब्यूटीफुल जर्नी। Yes, dear friends. Thank you, ma'am, for that. I mean, you're a very thoughtful person. आप यहाँ दिल से and मन से दोनों से, you mix both and you talk. That's wonderful. There's a beautiful combination between the mind and heart, and that is what she's sharing today with us. This beautiful journey on the International Fab Talks with our special celebrity. She's Dr. Megha Visha. Yes, dear ma'am. One important question now, dear. How do you manage stress? तो आपके एक्सपीरियंस के साथ जो थे 5+ years, इससे पहले आप यू वर ऑल्सो इनटू समथिंग एज यू मेंशन्ड अर्लियर, तो हाउ डू वी मैनेज स्ट्रेस? एक इंसान जो स्ट्रेस फेस करते हैं तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी में स्ट्रेस आउट हो जाते हैं वो लोग, तो इससे बाहर कैसे निकलना, कोई टिप्स ऐसे हैं मैम? तो सबसे पहले जैसे मैंने बात करी, आपको स्ट्रेस है, बेस्ट पार्ट है स्ट्रेस है, तो वो तो पहले स्ट्रेस आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। उससे पहले आपको तो कोई इमोशंस आया होगा ना, इवन तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, या फिर रिवेंज या जेलसी, कुछ तो होगा। जेलसी के बाद आप स्ट्रेस क्रिएट कराओ। स्ट्रेस कोई इमोशन नहीं है, ओके। और जो भी इमोशंस है उसके पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई होगी। कभी काफी टाइम है ना, क्रिस्टल, मैं आपको पूछूं आप क्या फील कर रहे हो, यू कैन एबल टू फील इन योर बॉडी, बट यू कांट से कि ये फीलिंग का मैं नेम क्या दूं। तो जब बॉडी पे फील कर रहे हो ना, बेस्ट पार्ट है कि हम फील कर पा रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बस हमें यहाँ से ही हमारी जर्नी चालू करनी है सेल्फ हीलिंग की। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट पे क्या कुछ हो रहा है, और पूछो ये क्यों हो रहा है, कुछ तो अंदर ऐसा है। तो हमारा कहना हमारे हर एक वर्कशॉप पे एक ही चीज है, यहाँ पे जो चल रहा है ना, वहां वही बाहर दिख रहा है। कोई फिल्म देखने जाओगे, पर्दे पे वही फिल्म होगी जो पीछे प्रोजेक्टर में होगी। प्रोजेक्टर में कुछ नहीं होगा तो फिल्म में पर्दा क्लीन होगा, आप कुछ भी उस पे देख सकते हो। तो हमारी रियलिटी भी ऐसी ही है। हमारे प्रोजेक्टर में, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फाइल्स है, उसी हिसाब से हम दुनिया को देख रहे हैं, और इसे ही हम बोलते हैं परसेप्शन। इसे ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट यानी जहां पे हम खड़े हैं वहां से हम व्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ से देख रही हूँ, आपके पीछे बहुत ब्यूटीफुल दरिया है, एक झाड़ है, पर शायद दरिया के पीछे भी कुछ होगा जहाँ पे आप बैठे हो और मुझे नहीं दिख रहा, पर शायद आपके पीछे बैठा हुआ इंसान शायद वो देख पा रहा है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी वो गलत है। यस। तो बस हमें हमारे इमोशन से लीड होके या बॉडी लैंग्वेज से लीड होके अंदर देखना है, क्या ऐसा एक्सपीरियंस है, क्या ऐसे बिलीव है, क्या ऐसा पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से आज मैं ये देख के ऐसा फील कर रहा हूँ।
जब आपने वो पहचान लिया, और आई हैव सम टूल्स जहां पे आप वो पहचानोगे भी नहीं और वो टूल सिर्फ यूटिलाइज करना स्टार्ट कर लोगे ना, इवन तो उसके साथ भी आप ईज क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने बोला ना होपोनोपोनो, okay, that is the forgiveness tool. That tool is very simple and very easy to utilize. There is a 4 phrase in that tool. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. So many people have that misconception कि ये मैं क्रिस्टल को बोल रही हूँ. It is not about that. You are talking to your inner child जिसने ये belief बनाया है, जिसने ये pattern बनाया है, जिसकी वजह से आज आप ऐसा feel कर रहे हो. You are talking to that inner child. Sorry कि मैंने तुझे इतने सालों तक acknowledge नहीं किया. Forgive me, जो भी संभाल के रखा है शायद अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. शायद वो 2 साल की मेघावी थी, उसको तब किसी ने बोला था यू आर नॉट गुड इनफ, बट दिस मेघावी इज नॉट अबाउट दैट. शी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. यस, तो सॉरी कि मैंने तुझे एक्नॉलेज नहीं किया. प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू कि आप अभी तक मेरे साथ हो. आई लव यू, आई लव द वे यू आर, आई एक्सेप्ट द वे यू आर, बट नाउ आवर जर्नी इज डिफरेंट. Just make it different and contribute to me. So this is the way. I have a lot of tool जहाँ पे हम वहां पे एड्रेस करते हैं, जहाँ पे हमारे so many inner childs है जो बहुत सारी चीजें ऐसे ही पकड़ के बैठे, ऐवे ही पकड़ के बैठे जो काम की ही नहीं है. बस उसको एड्रेस करके हम सिर्फ रिलीज कर देंगे ना, तो वो एंगर आएगा ही नहीं. 100% मैं आपको बताती हूँ कि वो एंगर भी नहीं आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा. और जब ये सब चीजें सेटल होती जाएगी आपकी लाइफ में, वैसे भी ईज होने वाली है. बट वो एड्रेस करना और उस पे एक्शन लेना ना, वो मेन है. काफी लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा है, मैं क्या करूं, मैं टूल देती हूँ, वो करे जा रहे, पर वो उस हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे. ऐसे ही रैंडमली करे जाना नहीं होता है. यू हैव टू एक्नॉलेज, यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से हुआ है, पर मैं ब्लेम क्रिस्टल पे डाल रही हूँ और सफाई अंदर कर रही हूँ, नहीं चलेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी बाहर हो रहा है वो आपके अंदर है, उसकी वजह से हो रहा है. वंस आई क्लीन अंदर वाला एरिया, तो ऑटोमेटिकली पर्दा वही क्लीन ही हो जाएगा. ये तो ऐसा हो गया, मिरर में देख के मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, मिरर क्लीन कर रही हूँ कि पिंपल चला जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. आई हैव टू क्लीन इनसाइड माय बॉडी एंड देन किंकल वो एक्ने चला जाएगा. यस, इट इज ऑल अबाउट दैट. You've explained it so well, ma'am. बहुत अच्छा, very clear and crystal clear. You have given all of that. मुझे भी थोड़ा सा समझ में आ रही है अभी आप जो शेयर कर रहे हैं ना, तो I can relate it to my own personal life and to the people around me. I can sense on your face as well as okay the energy that you are actually connecting the dots with your life like this. Yes, dear. Very true, ma'am. So, dear friends, have you seen? This is how ma'am is able to share her expertise with you, make you understand as to who you are, how to accept things, how to clean the inner self, how to be forgiving at the right time and conduct yourself in an appropriate way, in a dignified way. Yes, dear ma'am. I love the way you explain it. When you're explaining, आपके पास क्या है ना, एक clarity है. Yes. Clarity सबसे बड़ी बात है, जो आपके मन में है ना, जो what you want to convey. So clarity is everything. So I really appreciate that a lot. Thank you so much. Yes, dear. Dear ma'am, the next question, how would you want the world to remember you? इस दुनिया आपको कैसे याद करना है और क्यों? Okay, so that is very good question जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है. How does it get better than this? Definitely, मैं इस हिसाब से सोच, अभी जब आप पूछ रहे हो तो मैं इस हिसाब से सोच पाऊंगी कि दुनिया इस हिसाब से याद रखे कि जब भी उनके इमोशनल इम्बैलेंस हो, तो मेघावी ने बोला था टेक 100% चार्ज ऑफ इट एंड जस्ट रिलीज दोस फाइल, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन द लूप ऑफ द सोल जर्नी. क्योंकि सोल जर्नी कंटिन्यूसली करी जा रही है, कितने सालों से हम करते आ रहे हैं, अभी भी हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हम वही गिल्ट, रिवेंज, जेलसी, हेट्रेट में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. व्हाट इफ कि हम वहां से बाहर निकल जाए तो सोल अपना असेंशन प्राप्त कर ले. हम ढूंढ तो रहे मोक्ष प्राप्ति चाहिए, पर नहीं मिलेंगी जब तक हम इस सब में से बाहर नहीं निकले. तो एटलीस्ट लोग मुझे तब याद करें कि मेघावी ने बोला था टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट क्लीन योर सेल्फ, क्लीन योर माइंड, क्लीन
क्लीन योर एनर्जी, क्लीन योर ऑरा, और उसके बाद आप क्या अपना एक अलग ही आभा, अपनी अलग ही ऑरा क्रिएट करोगे. सो नाउअडेज आल्सो सो मेनी पीपल यूज्ड टू लाइक, मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं ऐसे टैप, आई सी एज अ जोक, कई कहा बोलते हैं किडिंग, हम याद करते कभी कुछ होता है ना, मेघावी ने बोला है टेक चार्ज ऑफ इट, टेक चार्ज ऑफ इट, डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम अदर्स. सो आई थिंक दैट इज द लाइन आई यूज टू से जब आप ये सवाल पूछते हो कि पीपल एटलीस्ट, कि मैं उनकी बेटरमेंट पे कंट्रीब्यूट दे रही हूँ जब वो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. सो दैट इज फॉर मी, दैट इज वेरी मच गुड इम्प्रेशन जो मैं छोड़ना चाहूंगी. Yes. Yes, dear. Thank you very much, ma'am. I really like the way you put it. Take charge of yourself and clean your inner self, heal your inner self, and Don't blame others. don't blame others. वही तो मैं वो thing, don't blame others. So when you do it, you're going to really be free of all the stress that you have within you. Don't blame others. Take charge of your own emotions, and acknowledge your emotions. Ma'am, what a beautiful way to remember you. That's really nice. And today I'm going to use it now. Don't blame others. कभी कभी क्या कर देते ना हम भी, ये नहीं हुआ तो किसी ऊपर इंजाम डाल दो. तो मैं अभी आज सीखूंगी मैं, आई विल रिमेंबर डॉक्टर मेघावी शाह फॉर शेयरिंग. Manage your own emotions and don't blame others. Yes. Even though, Crystal, so many times I'm also going to in that loop. Okay, even though I'm not saying कि being an emotional freedom coach, I'm not doing this. But the main area is I always used to say my student, आप healer बन गए हो तो ऐसा नहीं है कि आपके यूनिवर्स में chaos नहीं होगा, कि आप इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होगे, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. द मेन पार्ट इज कि इमीडिएटली आपको वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई हाँ, अभी नाउ आई जस्ट टेक चार्ज ऑफ इट. How can I blame others if I created this? Okay, so I just take charge of it and I just release those area which created this reality. And वो एक चीज है जो मुझे समझ में और that is the thing ना, मैंने इसलिए शुरुआत में बोला कि it is like हम कभी कभार भूल जाते हैं और धूल मिट्टी आ जाती है और हम भी वो लूप में चले जाते हैं. But when you are continuously empowering others ना, तो जैसे आज के ही दिन में दोपहर को बुक रीड हो रही थी, तो उसमें कुछ पैराग्राफ मैं पढ़ रही थी ना, अरे मैं कैसे भूल गई, मैं ऐसा कैसे करने लगी फिर से. आई जस्ट रिमेम्बर्ड इट, और मैंने ऐसे ही अपना इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे मैंने 2 दिन पहले यही चीज करी थी, एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर्स. सो डेफिनेटली ये सब चीजें हमारे साथ होगी या होने वाली है या हो सकती है, बट यही है कि हमें फिर से अपने वो लूप में ना जाके फिर से अपना चार्ज लेके वापस आना, वो मेन अवेयरनेस लाना जरूरी है. जी जी मैम, जब आप बातें करते हो ना तो बस सुनना, बस आई वुड लव टू लिसन टू यू. यू हैव दैट ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स and giving us that clear picture. Yes, dear. Thank you so much. Thank you, ma'am. And I love your Hindi. बहुत शुद्ध है, and you're very nice, crisp in that. I am basically I'm Gujarati. Wow. So I feel my Hindi is also not good. How does it get हमारे लिए तो better? बहुत अच्छा लगा कि भाई आपका जो कन्वर्सेशन का स्टाइल है, जो समझाने का एक तरीका है, तो काम, पीसफुल, you're not very fast, you're very precise. जो कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे कर रहे हैं आप. यू पुट इट इन अ वेरी राइट वे. सही तरीके से आप शेयर कर रहे हैं मैम. दैट्स नाइस. जी मैम, बुक आपने कहा अभी यू वर रीडिंग सम बुक. वुड यू लाइक टू शेयर एनी बुक विद अस कि भाई ये बुक पढ़िए आप, आपका जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. Definitely. So one or two, I have a lot of book which I read it, or even though I am so many times I am announcing free book club also, कि जिससे क्या है कि बुक रीड से भी काफी लोगों को बहुत सारे आई ओपनिंग्स होते हैं कि यस, और आप मुझे ये एक्सप्लेन करो जिससे शायद मेरी लाइफ में चेंज आए. तो वन बुक इज द which I always used to suggest, that The Magic, जो ग्रेटिट्यूड की बुक है. इवन तो द मैजिक तो गैरी डगलर एक्सेस कॉन्शियसनेस से बुक है. द फर्स्ट अभी जो एक एक्सेस कॉन्शियसनेस ने और एक लॉन्च की है, द गिफ्ट ऑफ अलाउंस, दैट इज आल्सो वेरी मच अमेजिंग बुक, क्योंकि वही चीज है ना, हम लोग जजमेंट्स में से बाहर ही नहीं आना चाहते. और गैरी जब ये बुक में समझाते, कैन आई एक्सप्लेन वन थिंग हियर? सो एक बुक में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि जब आप किसी के लिए जजमेंट बनाते हो कि क्रिस्टल कैसी लड़की है, कैसे उसके साथ में फ्रेंडशिप रखूं, उनको तो बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी देर में, तो ऑब्वियसली आई एम डिटैचिंग यू फ्रॉम मी. यस, अब मैं आपको दूर करती जा रही हूँ आपसे.
वैसे तो आप जिससे क्लोज हो उसके बारे में आपको कम जजमेंट्स है, और जिसके बारे में ज्यादा जजमेंट्स है उसको आप दूर करे जा रहे हो। यस। तो आप सोचो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप किसको जज कर रहे हो, सुबह से लेते रात तक, उठते मिरर में देख के रात को सोते समय तक। या दैट इज द पर्सन ओनली यू। सो हाउ मच यू डिटैच योर सेल्फ। और अभी इसीलिए हम उसको लव ही नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए सेल्फ लव प्रोग्राम्स चलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोग्राम चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो करने के बाद भी रात को सोते समय फिर से जजमेंट आता है, सुबह उठ के फिर से जजमेंट आता है। तो मतलब इन दिस बुक दे यूज्ड टू से कि वो जजमेंट से ही बाहर निकल जाओ ना। The be an allowance of that whatever you are and embrace your uniqueness. हर एक पर्सन अलग है। शायद हम लुक से इतने अच्छे नहीं है, पर शायद हमारी स्माइल इतनी अच्छी है, हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी है। शायद हम, मैंने जैसे बताया, मे बी वी आर गुड लिसनर, मे बी वी आर वी हैव अ गुड पोस्चर। कुछ भी हो सकता है, गुड एक्सप्लेनेशन पावर, कुछ भी हो सकता है, पर हम सिर्फ वो लुक पे ही चले जाते हैं। या मैं मोटी हूँ, या मैं छोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं लंबी हूँ, इसके बाल कितने अच्छे, एक्स वाई जेड, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके, सो मेनी टाइम। सो डेफिनेटली, तो ये एक बुक बहुत ब्यूटीफुल है, इवन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इवन एक्सेस कॉन्शियसनेस की बहुत सारी बुक है जो मैं रीड करती रहती हूँ, एंड आई गॉट सो मेनी अवेयरनेस फ्रॉम दैट बुक। इवन दो यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट्स ऑल्सो, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑल्सो। या Yes, dear. Thank you for sharing all of that, ma'am. Thank you very much. Dear ma'am, would you like to share the name of any movie which is connected with, the emotional side of a person? या इनसाइड आउट, आई लव दैट मूवी। मैंने मेरे बच्चे को कितनी बार बोला मेरे साथ बैठ के देखना, पर उसको देखनी ही नहीं। बट आई लव दैट मूवी बिकॉज आई एम इमोशनल फ्रीडम कोच, सो आई मोर कनेक्ट विद दैट मूवी। मे बी यू नो अबाउट दैट मूवी और नॉट। इनसाइड आउट करके है एक मूवी जहाँ पे वो इमोशंस की ही बात कर रहे हैं। हाउ द लाइक पर्सन है, और ऊपर एक फैक्ट्री चल रही है जहाँ पे इमोशंस पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। तो यानी बीच में एंगर आके आपकी रियलिटी चला रहा है फिर। एंड दैट इज ट्रू, हमारे इमोशंस ही हमारी रियलिटी चला रहे हैं। जब गुस्से में हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा इमोशन आता है गिल्ट एंड रिग्रेट का, वो अपना हैंडल करता है। फिर दूसरा इमोशन आता है सैडनेस का, वो हैंडल करता है। सो द वे वी आर नॉट द मास्टर ऑफ अवर लाइफ, इमोशंस आर अवर द मास्टर। तो वी हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ अवर इमोशंस। जब हम वो बन गए ना, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस तो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आने लगेगी। वो रास्ता पूछेगी, ये मेघावी का रास्ता कहाँ है और क्रिस्टल का रास्ता कहाँ है, लाइक दिस। और हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, पैसा कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, फेम कहाँ पे है। बट क्या आपको फेम मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा तो रियली आप हैप्पी हो जाओगे, वो भी एक सवाल है। यस, पर कंपैरिजन बहुत अच्छा वर्ड है, और जो हम बहुत ब्यूटीफुली यूज करते हैं। यस। Yes, dear. Perfect explanation, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. पता नहीं कहाँ से पॉजिटिविटी आ जाएगी हमारी जिंदगी में. That's very nice. So Inside and Out, that's a beautiful movie. Is it in English or in Hindi, ma'am? English, English. English movie. So friends, you watch the movie. I also, me too. मैं भी देखूंगी, ma'am, this weekend. Like It's amazing movie. You Yes. have to go through that. Yeah. Yes, dear. Definitely, I'm going to watch this movie because I would love to improve my emotional health and be the master of my emotions. If I could do it, you all can do it, my dear friends. Yes, dear ma'am. Dear ma'am, that's really nice, and thank you for sharing. इस सफर पर आप इतने सब कुछ ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉलेज. यू आर शेयरिंग दैट नॉलेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. क्या आपको कभी वक्त मिलता है अपने लिए एक छोटी सी वेकेशन लेने के लिए? मैं हमेशा फ्री ही रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। ओके, सो बिकॉज जो मेरा वर्क है ना, वो भी मुझे लगता है मैं अपने साथ ही कर रही हूँ। जो मैंने लास्ट एक वर्कशॉप में भी बोला था कि व्हेन आई एम फैसिलिटेटिंग यू ना, हियर इज आल्सो मेघावी, आई एम फैसिलिटेटिंग हर आल्सो। I'm telling her also कि you are also not in the allowance of that. You are not, you are judging people, you are comparing people. मैंने जैसे बोला ना, मेरी रियलिटी में भी होते हैं. I'm not denial it. ओके, बट एवरी टाइम आई जस्ट टेकिंग कॉल, मैं ज्यादा से ज्यादा सामने वाली मेघावी को देखती हूँ.
बाकी भी पार्टिसिपेंट को तो हम देखते ही है, बट मैं अपने स्टूडेंट को वो भी बोलती हूँ कि देखो हियर इज ऑल्सो मेघावी। मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन अपने पे ही दिन निकाल रही हूँ, अपने को ही टाइम दे रही हूँ। डेफिनेटली। और ऐसा है ना कि जब मैंने इतनी सारी मोडालिटी सीखी ना, उसमें मुझे समझ में आ गया, जस्ट फॉलो द एनर्जी। आपको लग रहा है ना कि आज जस्ट रिलैक्स करना है, तो जस्ट आस्क द यूनिवर्स। आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपके साथी है। यू जस्ट आस्क देम व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू क्रिएट लाइक रिलैक्सेशन, और जो भी आपको चाहिए। एंड जैसे क्या हो जाता है पता नहीं, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, दो अपॉइंटमेंट क्लैश हो जाती है, मैंने ले ली, शायद कुछ हमारे भी दिमाग से निकल जाता है कभी कभार और ले लेते हैं, तो आई जस्ट पुट द मैसेज टू यूनिवर्स कि जिसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन की और इमरजेंसी वाली कंट्रीब्यूशन की जरूरत है ना, उसको कनेक्ट कर दे। तो मुझे किसी को ना भी नहीं बोलना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चीजें अपने हिसाब से बैलेंस हो जाती है। और हम ना किसी वो कियोस में जाते हैं, ना कोई इरिटेशन में, ना हाई में, मुझे ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाता है। तो एक एक चीज है, जब आप अपनी एनर्जी को फॉलो करते हो और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो ना, तो हर एक चीज अपने हिसाब से बैठ जाती है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द वेकेशन, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स पहले से ही आ जाते हैं और बोलते हैं अभी आप छुट्टी मना लो, ठीक है। डेफिनेटली मैं बहुत इस चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ, जस्ट फॉलो द एनर्जी एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो आपके पीछे है, आपको वो गाइड करता ही जाएगा। यस। What a beautiful explanation, ma'am. Very beautifully explained. Very nice. So, in fact, I could relate it to myself. As you said, no, if there is a clash, kahin na kahin kuch clash aa gaye, so the priority one, let the universe decide. And it really eased out a lot. In my case, it happens a lot when there is a clash of Yes. timings while I'm taking the interview. हो हाँ, जाता कभी कभी मैंने टाइमिंग्स नहीं देखा and it is बट clashing. यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स ना, यू आर नॉट पुटिंग जजमेंट्स। अरे यार वो कैसा सोचेगे, अरे वो समझेगे कि नहीं, अरे उनको कितना बुरा लग जाएगा अभी नेक्स्ट टाइम वो इंटरव्यू। तो वी आर जजिंग सो मच एंड सो मेनी थिंग्स एंड थॉट्स आर गोइंग ऑन। वी आर से आई एम सो ओवर थिंकर, तो हो ही जाता है ना, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। आपको लगता है मैं ही Yes, dear की ma'am. जोन में चले जाते हैं। Yes, dear. Yes, dear. Dear ma'am, what is the thing you love about मेघावी? मेघावी के अंदर क्या है वो चीज जो आप मेघावी को पसंद है? मेघावी की स्माइल पसंद है। और मेघावी को पहले इतना समझ में नहीं आता था, बट अभी ऐसा समझ में आता है। जो उसके स्टूडेंट्स वगैरह हमेशा बोलते रहते, देन आई एम एक्नॉलेजिंग से, जो आपने भी अभी बोला कि आई हैव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन पावर। या डेफिनेटली ये दो चीज है कि मैं लोगों से, वो छोटा बच्चा भी क्यों हो ना हो या कोई बड़ी एज का पर्सन भी क्यों ना हो, मैं बहुत ब्यूटीफुली ईज के साथ उनके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। वो एक Yes, dear. Yes, ma'am. इजीली कनेक्ट विद देम। वो मुझे लगता है कि आई लव अबाउट माई सेल्फ। Yes. And I would love you to spread that energy, the positivity that is within you to many people. And many people out there, many organizations, schools, colleges, invite ma'am. Because the way you express, you make that person conscious ki bhai, haan, this is a reality where I have to focus on myself, of bringing out the best from within. यस 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 यस। Dear ma'am, let's come back to your school now. जब आप स्कूल में थी तो स्पोर्ट्स और गेम्स में कभी हिस्सा लिए? मैंने स्पोर्ट्स और गेम में हिस्सा लिया है, पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक इनर चाइल्ड होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर चाइल्ड आई थिंक सो काफी लोगों को समझ में नहीं आता होगा, तो आई जस्ट से अबाउट समथिंग कि इनर चाइल्ड ऐसी चीज है जो आपके अंदर ही आपकी कुछ मेमोरीज है, जो शायद 1 साल की मेघावी के होंगे, 2 साल की, 5 साल की, और वो बहुत सारे फाइल्स है जिसको हम एक टर्म देते हैं इनर चाइल्ड। यानी आपका ही एक बच्चा जो आपके अंदर है, वो शायद अभी भी कूदना चाहता है, नाचना चाहता है, चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहता है। यस, सो आई यूज्ड टू टॉक विद मेघावी लाइक दिस, ओके आज आइसक्रीम खाना है, थोड़ा 2 दिन रुक जा, लाइक दिस। सो वो जो इनर चाइल्ड है, तो जब मेरा जब जन्म हुआ था, तो माय स्किन टेक्सचर इज ब्लैक।
ओके सो एंड इवन दो उसके 1.5 साल के बाद ही मेरी बहन का जन्म हुआ, सो दैट इज द वेरी वाइट चाइल्ड। ऑब्वियसली वॉट एवर द टेक्सचर वी हैव, वॉट एवर वी बॉर्न, और जहां पे भी हमने जन्म लिया है वो हमारी ही सोल की चॉइस है। ओके तो ये अभी ये मेघावी को समझ में आता है, वो मेघावी को समझ में नहीं आता था। तो शी क्रिएटेड सो मेनी इनर चाइल्ड कि आई एम नॉट गुड इनफ because look, no one is entertaining me, no one is taking me, no one is even though giving the attention to me, and maybe because of that I always used to focus more on study, not this sports and everything, because I felt कहीं से मैंने शायद मेरे कोई इनर चाइल्ड ने सुन लिया होगा कि अच्छे से पढ़ेंगे ना तो लोग अटेंशन देना स्टार्ट कर लेंगे, लोग तुम्हें बताना स्टार्ट करेंगे, बुलाना स्टार्ट करेंगे। वो होता है ना, हम छोटे बच्चे को कुछ ऐसे समझा देते हैं और मेरे बच्चे ने समझ लिया। तो आई ऑलवेज यूज टू मोर फोकस ऑन द स्टडी 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 बिकॉज आई विश टू बी दैट पर्सन कि लोग मुझे अटेंशन दें, मुझ पे ध्यान दें, मुझे बुलाए लाइक दिस। बट नाउ इन दिस स्पेस ना मुझे समझ में आता है इवन तो मेरे इनर चाइल्ड है पर मेरी बहन के भी इतने ही इनर चाइल्ड है बिकॉज ऑफ द ब्लैक टेक्सचर, और कोई मुझे नहीं लेता था। आई एम द लकी चाइल्ड जो हमेशा मम्मी के पास रहती थी। मम्मी हमेशा मेरे पे ही फोकस देती थी इवन दो वो छोटी बेटी पे फोकस देना चाहिए। और उसको ऐसा लगता था व्हेन आई डिड हर थेरापी कि उसको ऐसा लगता था हर कोई मुझे टच करता है पर मेरी मम्मी तो मुझे लेती ही नहीं है। So many, like in this way I felt कि how we created our inner child जो बेसलेस है, यानी हमारे पास जो नहीं है ना उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, जो है उस पे हम फोकस ही नहीं करते। तो बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मैं ये बोल सकती हूँ कि या मैंने शायद इतने स्पोर्ट्स और उसमें पार्ट नहीं लिया, क्योंकि शायद शुरुआत में 1-2 में पार्ट भी लिया ना तो वही सेम आ गया, वो अटेंशन नहीं मिला। तो अगेन आई गो इनटू दैट लूप कि नहीं पढ़ोगे तो ही अच्छे से आपको अटेंशन मिलेगा। सो डेफिनेटली जब ये सब चीजें सीखते हैं और समझते हैं ना तो बहुत सारी बचपन की चीजें समझ में आती है, यार कैसा हम बेफिजूल की चीजें पकड़ के बैठे जो आज की तारीख में शायद हमें वो ग्रोथ नहीं दे रहे जो हम वहां पे होने चाहिए रियली। क्योंकि वही चीजें हम स्टक करके बैठे हैं ना अभी भी कि यार हाँ मैं काली हूं तो कोई मुझे अटेंशन नहीं देगा। और ये मेरा बहुत सालों तक था एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर ऑफ लोनलीनेस। मैं कोई भी काम अकेला नहीं करती थी, मैं इवन तो जब तक मैंने ये सब चीजें नहीं सीखी ना, मैं प्रैक्टिस भी ग्रुप के साथ ही करती थी। आई स्टार्टेड विद द ट्रस्ट, आई स्टार्टेड विद द गवर्नमेंट जॉब, आई स्टार्टेड विद द वन एनजीओ, आई स्टार्टेड विद द एक पार्टनरशिप की क्लिनिक, और इवन दो आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। जब मैं हर जगह पे जाती थी हर जगह पे मेरी पार्टनरशिप थी, यानी 4 क्लिनिक थे, 4 क्लिनिक में मैं पार्टनरशिप के हिसाब से जाती थी बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ लोनलीनेस। एंड नाउ आई एम इन दैट स्पेस कि जहाँ पे अभी मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल रही 100% नहीं है पर शायद काफी ओवरकम हो चुकी। Yes, dear. Yes, ma'am. माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, dear. Yes, या dear. ओके यस तो Yes, dear ma'am. Thank you for sharing, dear. Thank you so much. Dear ma'am, I would like to ask you this question. What type of a change would you like to see in the world? किस तरह की बदलाव होनी चाहिए इस दुनिया में? एज अ इमोशनल फ्रीडम कोच तो मैं वही बोलूंगी, जस्ट embrace your emotions which are in the high frequency. So which are the high frequency emotions? The emotions are, first is the gratitude. Just start to give gratitude each and every person and each and every molecules. If you are like someone is कुछ आपके लिए खराब भी कर रहा है ना तो उसमें भी आप ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि वो जो हो रहा है ना शायद इस वजह से हो रहा है कि उसके बाद में कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने एक स्टोरी बताऊं तो आपको तेनाली रामा आपने सुना है, सीरीज आती थी। तो उसमें तेनाली रामा कहीं भाग के जा रहा था जहां पे उसको एक्चुअली एंड पॉइंट पे फास्ट एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना था। और वो माता पे बहुत बिलीव करता था, वो चैंट कर रहा था काली माँ का और कंटिन्यूअसली भागता जा रहा था और एक पत्थर आ गया और वो गिर गया।
और उसको लग गया। तो उसने माँ से बोलना स्टार्ट करा, तुम्हें पता है मुझे वहां तक एज सुन एज पॉसिबल पहुंचना है, तुमने मुझे गिरा दिया, अभी मैं टूटे हुए पैर से वहां तक कैसे जल्दी पहुंचूंगा। अभी तो वो बोल रहा है ना, वहां पे तो एक पागल हुआ बैल दौड़ के आ रहा है। सो वो गिरा नहीं होता तो वो बैल तो उसको कहीं ना कहीं उड़ा के चला जाता, तो गेट तक तो पहुंचने की बात ही दूर है। ये शायद गिरा है तो थोड़ा टूटा हुआ पैर लेके भी जा सकता है। तो कभी कभार कुछ ऐसा भी हो रहा है ना, तो गिव द ग्रेटिट्यूड के थैंक यू सो मच के शायद इतना ही गिरा तो फिर थोड़ा एफर्ट डाल के भी मैं गेट तक तो पहुंच सकता हूँ। सो फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, लव, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट आपको हर कोई को देनी है, वो छोटा बच्चा भी हो या बड़ा इंसान भी हो, और आपसे इकोनॉमी वाइज छोटा हो या नॉलेज वाइज छोटा हो, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। लव, केयर, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, happiness, joy, these all are forgiveness, these all are the high frequency vibrational emotions है। Be that energy and remove all the lower vibrational frequency के जो भी anger, hatred, jealousy, फ्रस्ट्रेशन, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ब्यूटीफुल नाम दिए हुए हैं उसके, तो उनको निकाल लो। और उसके निकालने के लिए जो भी सिंपल टूल्स एंड टेक्निक आपको आती है समझ में, जस्ट स्टार्ट टू यूटिलाइज इट and start to practice this forgiveness, gratitude and start respect each and every person। तो वो ऑटोमेटिकली ये सब ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Yes, dear. Yes, dear. Thank you so much for explaining all of that so well. And when you do all of this, my dear friends, the world will be beautiful for you and for others as well. Yes, Start up with gratitude, right? yes, because we know now this COVID ने हमें सिखा दिया। COVID is all about the, if as a chakra healer, if I share one thing कि COVID is all about the heart chakra। सभी के हार्ट चक्र इम्बैलेंस हुए ना उस दौरान, बिकॉज व्हाट इज द हार्ट चक्र एरिया, हार्ट एंड लंग्स। या तो कोविड ही बता रहा है कि हार्ट चक्र पे ज्यादा काम करो। तो हार्ट चक्र इज अगेन मोर अबाउट द लव, केयर, ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट। यस, पीस एंड काम, जॉय एंड हैप्पीनेस। तो बस आप उस पे काम करो। एंड हार्ट चक्र अगेन द मिडल ऑफ द चक्रा, जब अपर 3 है नीचे 3 है तो उसका मिडल पॉइंट हार्ट चक्र है। तो आप यूनिवर्स से भी इतने अच्छे कनेक्टेड हो और आपका ग्राउंडिंग भी अच्छा है, आप मदर अर्थ से भी। तो फादर स्काई एंड मदर अर्थ ऑलवेज विथ यू once you are becoming that energy of the heart chakra frequency। Yes, Yes, dear. Beautifully explained, ma'am. Thank you so much. Thank you for explaining the story of one small story which you explained. The Tenali Rama bole the aapne. yes, yes, wonderful. yes। Thank you very much, dear. Thank you. Dear ma'am, what about your best friends? आपके इस जर्नी में, ब्यूटीफुल जर्नी जो आप हैं अभी इस सफर पर, क्या आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं बचपन से लेके आज तक? जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ, would you like to share their names? Yeah, I have a lot of friends, okay? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, जो भी मेरे पेशेंट तो अभी मैं नहीं बोलूंगी, क्लाइंट्स है, और जो भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, सभी मेरे फ्रेंड्स है। क्योंकि मैं किसी के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी पे ब्लेम डालने का कोई फायदा ही नहीं है। इफ आई एम नॉट कनेक्टेड विथ यू बीइंग अ फ्रेंड, तो समथिंग इनसाइड ऑफ मी विच आर ट्रिगरिंग, ओके, कुछ तो हुआ होगा चाइल्डहुड में हमारे साथ जो ट्रिगर कर रहा है, तो मैं उसको एक्नॉलेज करूँ और समझ लूं। और इफ यू आर विलिंग टू, लाइक आपकी एक स्पेस है, आपकी चॉइस है कि मेघावी से के मुझे अभी लंबा कनेक्ट नहीं, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट योर चॉइस। मैं उसको पकड़ के खींच के आपको मेरे पास नहीं ला सकती। तो मेरे लिए तो इतना ही समझ में आता है, आई एम वेरी गुड, लाइक मेरे पास जो भी स्टूडेंट है ना, वो सभी मेरे इतने ही अच्छे फ्रेंड्स हैं कि हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं, हम कभी भी मिलते हैं। और स्कूल की फ्रेंड्स भी इतने ही कनेक्टेड है जो कनेक्ट हो सकते हैं, और इवन दो कॉलेज के भी इतने कनेक्टेड है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कितने नाम मैं बोलूं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स सर्कल कि मैं कभी भी किसी को भी कॉल भी कर सकती हूँ, और एनीवन कॉल मी एनी टाइम लाइक दिस। Yes, dear. Thank you so much for sharing that. Thank you very much. And we send a lot of love from the International Fab Talks to all the friends of our celebrity today. She is Dr. Meghavi Shah, an emotional freedom coach and abundance happiness coach as well. She's sharing so much on this platform, enabling us to be the better version of ourselves. Yes. Lots of love from the International Fab Talks to all of you.
Lots Yes, of dear love ma'am. and thank you so Yes, much. yes, Yes, so yes, sweet, yes. so sweet. Thank you very much. Dear ma'am, आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट कब आती है? मेरे चेहरे पर ऑलमोस्ट मुस्कुराहट रहती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई लव माय स्माइल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब नहीं रहती है, अगेन आस्क माय सेल्फ what is that inside of me which is triggering and not having that smile. So उस पे मैं वर्क करती हूँ, जो भी मेरे टूल्स एंड टेक्निक्स है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, हम सबकी जर्नी है इसलिए यहाँ पे है, नहीं तो सोल तो कभी की मोक्ष प्राप्ति कर चुकी होती। यस, तो डेफिनेटली दैट इज ओनली द आंसर कि मेरे पास हमेशा रहती है, जब नहीं रहती है आई हैव माय ओन टूल्स एंड टेक्निक्स जो मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। यस। Excellent, ma'am. Excellent. Thank you, ma'am, for sharing. Dear ma'am, कोई कमजोरी, any weakness? वीकनेस एज अ अभी की मेघावी की मैं वीकनेस बोल सकूं तो या ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि शायद शायद मैं ऐसा मानती हूँ, या एक्चुअली ये गुड क्वालिटी है, मैं समझ नहीं पाती हूँ, बट आई एम मोर गिवर। समटाइम्स आई फील दैट कि कोई मुझे कॉल भी करेगा, मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरा 1 घंटा जाएगा या इतना लंबा बात कर रहा है, और या ये मेरा स्टूडेंट या क्लाइंट नहीं है, और ही इज नॉट और शी इज नॉट पेइंग मी, and I'm continuously guiding. And so many times people used to say me, "Okay, this is not good. People are taking advantage of you and that blah 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 blah." But शायद मैं उसे ऐसा नहीं अभी तक समझती हूँ, और मैं ऐसा ही मानती हूँ, मे बी वो उसका कॉल है और उसकी समझ है, उसको शायद वो टाइम वो स्पेस चाहिए। तो मे बी दिस इज आई थिंक मे बी दिस इज माई वीकनेस, कि आई एम वेरी मच मोर गिवर। और मेरा एक और है जो मुझे समझ में आता है, मैं बहुत बोलती हूँ। ओके, सो दैट इज मे बी आई थिंक वन ऑफ माई वीकनेस, कि मुझे समझ में आता है कभी-कभार कि मेघा भी ज़्यादा बोल रही या नहीं। सो उसको नहीं सुनना था, लाइक दिस। ओके। Yes, dear. So your weakness is your strength as well, ma'am. जो अभी आप गिवर है ना, तो जितना आप दोगे उतना आपको फिर मिलेगी. Yes. यस, That यस, is it. So your weakness will change into your strength. And जब आप ज्यादा बोलते हैं, you're saying you speak a lot. You're giving out a lot of information, a lot of knowledge. यस, तो बस ऐसी कोई बातचीत नहीं है, तो सचमुच में आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आपका एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है. तो चेंजिंग द वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. यस. यस, यस, वंडरफुल. थैंक यू। यस डियर. डियर मैम, आपको किसी चीज से डर लगती है? डर तो वैसे काफ़ी चीज़ों से लगता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज़ फ़ियर ऑफ द लोनलीनेस, काफ़ी मुझे ओवरकम कर लिया। बट हाँ, मुझे छिपकली से डर लगता है। ओके, काफ़ी टाइम ऐसे अभी तो नहीं ऐसा लगता है कि मुझे अंधेरे से लगता है, पहले मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। और मेबी एक चीज़ है, कहीं अंडरनीथ है जो मुझे लगता है कि losing someone, I have that fear and I'm like I feel कि मैं उस पे कहीं ओवरकम हो भी रही हूँ, बट समवेयर आई फेल्ट कि हाँ, जो मैं एज अ इमोशनल फ्रीडम, इफ आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग माय फियर, तो वो मुझे लगता है कि वो एक गलत चीज है। तो मैं समझूंगी कि दैट इज वन ऑफ द फियर इनसाइड ऑफ मी, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट एंड आई विश टू ओवरकम इट। यस। यस डियर मैम, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग. नाउ वन वेरी पर्सनल क्वेश्चन. आपको गुस्सा आता है मैम? अगर हाँ, आता आता है तो है। कब कब आता है, कब? पहले मुझे बहुत ही आता था, क्योंकि डेफिनेटली मैंने जैसे बताया बीइंग अ पीपल प्लीजर। ओके, और आप प्लीजिंग करते जाते हो, करते पीपल प्लीजर में क्या है, अगेन वही बहुत ज्यादा देते जाओ किसी को नाम, और अंडरनीथ क्या बनती जा रही है, एक्सपेक्टेशन। एंड फिर जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती थी ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी मुझे गुस्सा आता है, बट उतनी तक का नहीं आता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट कभी-कभार हाँ, वो चीज़ है जब कोई मुझे समझ नहीं पाता है, तो मुझे गुस्सा आता है। दैट इज़ वन थिंग कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझा, और इट इज़ मोर अबाउट माय हस्बैंड एंड माय किड।
ओके, नॉट एनीवन एल्स, शायद मैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ इसलिए दूसरों पे मुझे इतना नहीं आता है, बट इन दोनों पे कभी कभार आ जाता है कि भाई मैं इतना तो समझ लो मुझे, लाइक दिस। सो या ये वो चीज है, आता है, गुस्सा आता है। जी एंड आई एम ऑल्सो वेरी इम्पेशंस, तो मुझे अभी तो मैं कम हूँ, पहले मैं बहुत थी। तो कभी मुझे कोई वेट करवाता है रास्ते पे तो भी मुझे गुस्सा आता है कि किसी ने मुझे बोला है कि आप यहाँ यानी धूप में खड़ा, घर पे बैठी हूँ तब तक चिल मार रही हूँ, पर कोई मुझे नीचे बुला ले और फिर बोले कि अभी मैं मुझे 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, तो फिर से वो हाई हो जाता है। तो आई नो दिस टू थिंग्स स्टिल inside of me, and I am overcome it as soon as possible. Yeah. यस डियर, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू वेरी मच। आपका फेवरेट कलर डियर? My favorite color is blue and purple. तो आपका पर्पल आपने पहना आज, इट्स योर No, it's फेवरेट by कलर? coincidence. But yeah, but this is my favorite color and blue is my favorite. मेरा wardrobe blue color के dresses से भरा पड़ा है. तो आपके लिए ब्लू कलर बैकग्राउंड, ओके? Yes, how does it get better than this? वो पहले से ही था, इसलिए फिर मैंने आपको बताया नहीं. यस डियर, और ये पर्पल जो है ना, रॉयल कलर है वो। यस डियर, कनेक्टेड टू Yes, रॉयल्टी। yes. मैम आप जब स्कूल में थे तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था मैम? Ideally मेरा favorite subject maths था और biology. And I love to teach at that time. Obviously मैं आयुर्वेदा में चली गई तो आई फेल्ट यार अभी टीचिंग नहीं होगा, पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं घूम के एक ऐसे स्टेज पे मैं फिर से आ गई जहाँ पे अगेन मैं टीच करने के लिए रेडी हूँ और मैं काफी कोर्सेज सिखाती हूँ। या दैट इज माय मैथ्स इज माय गुड, लाइक बोलते हैं ना, मुझे बहुत कनेक्टिविटी थी, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस वो मेरे से छूट गया यस, because I choose science and Ayurveda. Yes. यू आर अ ग्रेट टीचर। जब आप बात करते हैं तो सुनना, नो पीपल विल लव टू लिसन टू यू। यू हैव दैट टेक्निक टू ब्रिंग everything and put it in the right balance. Yes dear. Yes. Thank you. Yes dear ma'am. Dear ma'am, एक अभी अच्छा सा फेवरेट कोटेशन या प्रोवर्ब, मुहावरा शेयर कीजिए। Change your emotions, change your reality, वाओ, and सुपर। create happiness in your life. चेंज योर इमोशंस एंड चेंज योर Change रियलिटी। your reality and create happiness in your life. सुपर डियर। डियर मैम, आज तक आपने इतना सब कुछ हासिल कर चुके हैं। you're on a beautiful journey. सबसे बढ़िया, सबसे खास वाला अचीवमेंट कौन सा था? वाओ, ये अचीवमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं क्योंकि मेरे लिए एक माइनर माइनर फीडबैक भी वाव ही होता है कि वाव आई लाइक वन एक चीज जिसके किसी की लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट लाया है। सो वो एक नॉर्मल कोई मैसेज भी मुझे भेजता है, फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड जब मैं प्रॉपर आपको एक चीज बताऊं तो माय सन, जो उसकी रियलिटी में जो शिफ्ट आया है, द बिहेवियर, द एवरीथिंग, एंड पीपल यूज्ड टू से मी कि जियान में बहुत शिफ्ट है, जियान में बहुत शिफ्ट है। दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि यस, जिससे मैंने ये स्टार्ट किया था एंड आई अचीव्ड इट राइट नाउ। एंड नाउ माय सन इज लाइक माय, बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंड। जब आप फ्रेंड की लिस्ट बोल रहे हो तो जियान इज माय फ्रेंड फर्स्ट, कि वो अभी मेरे साथ एकदम फ्रेंड के जैसे है। एंड इवन दो जो हमें आसपास देखते भी, इवन तो माय हस्बैंड इज आल्सो लाइक दैट कि वी थ्री ऑफ अस आर वेरी गुड फ्रेंड। हम रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ या मदर और सन का या फादर या सन का होता है, वो रिलेशनशिप हमारे लिए बाद में आता है। हमारे लिए तीनों के लिए फर्स्ट फ्रेंडशिप पहले आती है। जो भी चीजें हैं हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, समझते हैं। तो वो एक चीज है जो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मैंने अपने तीनों में वो एक क्रिएशन बैलेंस रखा है और उसको मैंने क्रिएट भी करा है कि यस, दिस इज द वे वी हैव टू लिव अवर लाइफ। Yes dear, thank you so much ma'am for sharing all of that. Thank you very much dear. Thank you. थैंक यू। Thank you ma'am for sharing all of that. Thank you very much. Dear ma'am, what about pets? Pets are Okay. healers. Yes, 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 yes. They are very sensitive with the energy. Okay, and
इफ यू हैव अ पेट इन योर हाउस ना, तो वो क्या हो जाता है कि आपकी एनर्जी भी वो सेंस करके कभी कभार वो भी उन पे इम्पैक्ट देती है. सो डेफिनेटली आई लव पेट, बट या डेफिनेटली, पर मैंने कभी रखने का नहीं सोचा है, बिकॉज मे बी आई हैव अ फियर ऑफ डॉग. ओके, सो डेफिनेटली यस, बट आई लव पेट. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास है, तो जब उनके पास जब होते थे, तो उनको जब वो मेरे पास आते थे, तो समटाइम्स आई हैव दैट फ़ियर, बट अभी तो वो भी नहीं रहता है. आई लव टू टॉक लाइक उनके साथ रहना, उनसे कनेक्ट होना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना, आई लव दैट. Yes, dear. Dear ma'am, I have a cup in my hand. How would you look at this cup? Is it half full or half empty? Okay, so it is all about the perception again. Okay, so it is all about what I want. It is about that. कि देखो मुझे हाफ ही चाहिए था, तो आई एम हैप्पी विद दैट. इफ आई विश टू हैव फुल इट, तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगी कि क्यों आधा ही भर के आए. आई विश टू हैव फुल इट. सो मेरे लिए तो सभी, मैं इतना ही समझती हूँ ना, जैसे हर एक, इट इज ऑल अबाउट योर परसेप्शन. यस, Yes, dear. डेफिनेटली. Yes, dear ma'am. जैसे बताया ना, रील में जो चल रहा है वही यहाँ सामने चल रहा है. तो लैक रहेगा तो हमें कम ही दिखेगा, बट अबंडेंस में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो अबंडेंट ही दिखेगा. वो इतना भी हमें ज्यादा ही, इतना क्यों लेके आए, मुझे तो एक शिप ही पीना था, क्योंकि देयर इज नो लैक इनसाइड ऑफ मी. या बट इफ आई हैव अ वेरी थ्रस्टी, तो ऑब्वियसली आई एम इन द लैक. तो ऑब्वियसली आई सी के हाफ ही क्यों लाए. जी, So happiness is also like that. If you have a lack of happiness, आपको बाहर जितनी मिल रही है उतनी भी कम ही लगेगी. But you have in the abundance of the happiness, तो आपको जितना इतना भी मिल रहा है ना छोटू सा, तो भी आपको बहुत ज्यादा लिखेगा. Yes, dear. Beautiful, ma'am. Beautiful sharing. Thank you so much. Ma'am, as you said, Hindi, English, Gujarati, इसके अलावा और कितने भाषाएं आती हैं आपको? एक भी नहीं. Even though I am staying in the Maharashtra, in like last 13 years से मैं मुंबई में हूँ, पर मुझे मराठी लैंग्वेज भी नहीं आती है. Okay, so yes, I know this only these languages. मराठी में मुझे एक लाइन आती है. तुझं नाव काय? Is it correct? Yes, yes, समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा. बट बोलने में नहीं आता है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. जब से मैं मुंबई में हूँ, जहां जहां मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने बोला ना मेरा पार्टनरशिप में होता है. इवन तो यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी कोविड के बाद भी मेरा कंटिन्यू ही है आयुर्वेदा का प्रैक्टिस. तो जब भी कोई मराठी, एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी आता है उनको हिंदी तो आता ही होता है, जी, जी. तो फिर भी यार कंफर्टेबल. और फिर भी बहुत एक ओल्ड एज के कोई लेडी आ भी जाते हैं, उनको हिंदी भी नहीं समझ में आता है, तो आई हैव अ ट्रांसलेटर. सो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हाँ ठीक है ना, अंकल को बुला दिया और बोल दिया अंकल जरा ट्रांसलेट करके बोल दो वो क्या बोल रहे हैं, और दे एबल टू अंडरस्टैंड माई हिंदी. तो मेरे लिए वो तो वैसे भी कंफर्ट जोन था. तो कभी वो बोलते हैं ना, वो जरूरत ही नहीं आई कि और कोई लैंग्वेज हम सीखें. यस. अभी आपके लिए एक छोटी सी टास्क है मैम. हमारे लिए छोटी सी हमारी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है. सिंग अ सॉन्ग फॉर अस. ओके. योर फेवरेट सॉन्ग Okay, my favorite song. Okay, in any language, whichever language you are comfortable. yeah. So, गजब का है दिन, देखो जरा, के दीवानापन, सोचो जरा, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है, कसम से, कसम से, देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से, कल फिर हम कहाँ और तुम और कहाँ हो. और I used to sing this song daily with myself, my inner child, and I love to sing this song with my inner child. So I always used to say in my self-love program also कि sing song like कुछ गाने ऐसे अपनी लिस्ट में रखो और उसको गाओ अपनी बॉडी के साथ, अपनी इनर चाइल्ड के साथ, एंड दे आर डूइंग दैट एक्सरसाइज एंड दे आर गेटिंग वेरी लाइक, वो बोलते हैं ना कि उसको करने के बाद पूरा अलग ही फील आता है. सो दैट्स व्हाई आई लव दैट सॉन्ग, गजब का है दिन. Yes, dear.
Thank you for singing. You have a lovely voice. बड़ी प्यारी सी Thank you. voice है आपका. And beautiful song also you've selected, dear. I guess it's from Kayamat se Kayamat tak, is it? Yes. I was a teenager at that time, and then we were crazy about these songs from this movie. Yes. Obviously, पहले के जो आशिकी के गीत थे और Yes, dear. डेज लाइक वो हमारे डेज थे वो गाने सुनने के भी. सो डेफिनेटली यस. और पहले के जो सॉन्ग्स थे उनके वो जो बोलते हैं ना कि एक एसेंस ही अलग था जब हम उसको फील कर पाते थे ऑब्वियसली. तो वो एक चीज है कि पुराने गाने तो आज की तारीख में भी आप एक चीज है ना, आज की तारीख में भी क्रिस्टल हम अंताक्षरी खेलने बैठते हैं ना, हमें ज्यादा तो पुराने गीत ही याद आते हैं. नए गीत आते होंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे नए गीत भी इतने ही कनेक्टेड है, पर हमें ज्यादा याद वही आते हैं. सो एक दिन है ना, मैंने ऐसे ही प्रोग्राम रखा था कॉल पे और मैंने 90s के गाने बजाए थे एंड पीपल आर यूज्ड टू मैसेज मी कौन सा आपने लिंक भेजो यूट्यूब का कि कौन से गाने आपने प्ले करे थे, बिकॉज that in that program we are coloring with that song and then after that we are dancing with that song, but dance with the your inner child. सो आंख बंद करके आपको वो इनर चाइल्ड के साथ ये सॉन्ग गा के डांस करना है, बिकॉज मैंने जैसे बताया ना, यू आर वेरी मच सेपरेटेड फ्रॉम देम. तब ये इससे आप धीरे धीरे उनको आपके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो. सो या तो पुराने गाने तो वैसे भी. Yes, dear. Thank you, dear. Thank you for sharing, ma'am. If the Almighty or the universe offered you a gift, आप कौन सा गिफ्ट चुनना चाहेंगे? I mean, what type of a superpower? कौन सी सुपर पावर? सॉरी का शायद नेटवर्क गया तो आई Yes. कांट इवन. I'll अगेन repeat यू it. जस्ट रिपीट. I'll repeat. If the Almighty or the universe, the Almighty or the universe gifted you a superpower, what type of superpower would you select as a gift? और चांस भी दिए कि भाई आप सिलेक्ट कीजिए, तो आप क्या चुनना चाहेंगे? सेम इमोशनल फ्रीडम. एनी मैजिक आई हैव जहाँ पे मैं लोगों का ईज के साथ इमोशंस यानी एक ऐसा टूल उनके दे सकूं कि बस ये मेरे पास से ले लो थोड़ा ऐसा, और इमीडिएटली आपकी इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं उसको हायर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लो. क्योंकि मुझे अभी हर जगह पे वही दिखता है सच्ची में, क्योंकि आई एम दैट बीइंग दैट एनर्जी में भी शायद इन 5 सालों में कि एक ही ये इतना मैंने रिसर्च किया है ये एक इमोशनल फ्रीडम पे, मुझे समझ में आता है बस ये एक एरिया आपका हो जाएगा ना तो पूरा सर्कल क्लीन हो जाता है. सो डेफिनेटली इफ लाइक यूनिवर्स अलाउज मी एंड आस्क मी कि क्या चाहिए बेटा बोल दे, तो फिर मैं बोलूंगी ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दे जो खत्म भी ना हो और मैं कंटिन्यूअसली सबको देती जाऊं और उनके पास भी खत्म ना हो. लाइक दिस, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? Yes. Yes. That's beautiful. Thank you so much, ma'am. And we wish the Almighty blesses you with this beautiful wish of yours. Yes, dear. Dear ma'am, if you were given a time machine in your hand and at the click of a button that would take you into the past era, and there you have to relive somebody's life, that is the task. So whose life you would love to relive? Oh, that is a very unique and different question. Okay, whose life can I live? Maybe my own soul का जो original essence life है that. जहां से उसने जर्नी की पहले बात ही की कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ अर्थ पे, उसको मैं जीना चाहूंगी, मैं समझना चाहूंगी क्या देखा तूने अर्थ पे कि चूज किया और क्या तेरा मोटिव था, क्या तेरा प्लान था, क्या तेरा पर्पस था. बिकॉज अभी भी हम वो पर्पस तो जान ही नहीं पाए कि क्यों यहाँ पे मेरी ये सोल ने जन्म लिया है. सो डेफिनेटली मैं शायद किसी पर्सन की बात नहीं करूंगी. जब बीइंग अ हिप्नोथेरापी और बीइंग अ इमोशनल फ्रीडम को जितना हम समझते हैं सोल के बारे में और सोल की जर्नी के बारे में, इफ आई एम बिलीविंग इन दैट हार्ड कोरली, तो मैं डेफिनेटली वही चाहूंगी कि मेरी सोल की प्योर एसेंस है ना वहां पे मुझे लेके जाओ और बताओ कि क्या था जो उसने, शायद कोई भी हो सकती है वो सोल की एसेंस, वो एंजल भी हो सकती है, एनीथिंग. आई विश टू गो दैट. Yes, dear. Thank you so much, ma'am, for sharing. Dear ma'am, now we've come to an end to the main round of the interview. We have a small segment called as the rapid fire round. Oh. Okay.
and this will take around about 10 minutes, where you would have to answer in 1 word, 2 words, or maximum 1 sentence. It's a small segment. Okay, dear? Yeah. Hey, dear friends, it was a beautiful journey getting to know a lot on how to control our emotions. And if you'd love to connect and bond with our celebrity today, she's Dr. Meghavi Shah from Mumbai. Right, ma'am? Mumbai, right? Yes. Mumbai, Maharashtra, India. How to free yourself from the past traumas, how to forgive, how to release the emotions that are stuck within you, how to bring in positive emotions. She will guide you. Now it's the time to understand and get to know about her likes and dislikes. Yes, dear. Okay. Yes, ma'am. Over to you. Aapka sabse favorite day is 7 days in a week. Your favorite day? All days. Wow, all days. Your favorite number? 7. Coffee or tea? Tea. Texting or calling is best? Sorry. Texting, messaging karna, या call Calling. karna? Which saves time, comfort level, right? Yes, dear. Dear ma'am, आपका सबसे dangerous insect कौन सा है? Chipkali. Chipkali. Already you have mentioned that earlier, like you don't like that. Yes, dear. Dear ma'am, एक सुंदर सा दिन एक शब्द में. Sorry, I didn't get the question. Yes, dear. एक ब्यूटीफुल डे, वन ब्यूटीफुल डे और अ नाइस डे, एक अच्छा सा दिन, आज का दिन अच्छा कट गया, बस एक शब्द में. एक सुंदर सा दिन क्या होता है? एक ही शब्द में बोलना है. एक ही शब्द में सुंदर सा दिन क्या होता है? Happiness. Perfect. When you help others, do you expect anything in return? Sometimes. Very true. City, village, or a town? Like village. Land, I'll put it like this. Roadways, railways, waterways, or airways? Waterways. Yes, dear ma'am. Dear ma'am, is it the summer, the winter, rainy, or autumn season? Spring season? Spring season. Is it chocolate, cakes, ice creams? First, Ice creams. which With flavor? chocolate. Mm-hmm. Chocolate Ice ice cream? cream. Chocolate ice cream. Okay. मैंने क्या समझा था? It is ice cream, chocolate and cake, but then you say no, it is chocolate, ice cream and chocolate flavor. Am I right? Yes. Yes, dear. Dear ma'am, are you an early bird or a night owl? I can say both according to plan. Dr. Meghavi ma'am, are you a great cook? I can say I am a great cook. बाकी सबका मुझे पता नहीं है. Yes, I am a great cook. जी. आपकी सबसे फेवरेट रेसिपी कौन सा है मैम? For me, to cook, for cook or for eat? Eat or cook, both. सबसे फेवरेट रेसिपी. Okay. Chaat. यस डियर. आपका फेवरेट टीचर का नाम, जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, कोई सर या टीचर ऐसे थे जो आज तक आप उनको याद करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं? So there is so many. नेम देना है सबका या एक का? किसी का आपका फेवरेट, सबसे बढ़िया. रेशमा मैम, मयूरी मैम करके भी एक थे, बाकी तो बहुत सारे. यस, और बहुत सारे हैं. तो रेशमा मैम एंड द अदर मयूरी मैम. मयूरी मैम. यस. डियर मैम, इज इट सॉल्टी फूड, स्वीट, स्पाइसी और सार फूड? खट्टा, मीठा, कड़वा? स्वीट. स्वीट, मीठा. मिठाई में सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है मैम आपको पसंद? मुझे सब पसंद है. मीठा मीठा बहुत खाती हूँ मैं. कल ही मेरे हस्बैंड मुझे. That's nice, and I love the way she said सब पसंद है मुझे. हर तरीके की मिठाई जो भी है, I love that. Yes, dear मैम, जिंदगी क्या सिर्फ जिंदगी पैसा है, या सिर्फ जिंदगी खुशी है, या इन दोनों को मिला के जिंदगी बनती है मैम?
जिंदगी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी दोनों को मिला के बनती है। जिंदगी हैप्पीनेस है, मनी फॉलोज द हैप्पीनेस। वेरी नाइस। जब आप अकेले हैं, आसपास कोई भी नहीं है और आपके पास कोई गैजेट्स भी नहीं है, फोन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप अपने थॉट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो तब आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके सोच आपको कहाँ ले जाती है? पास्ट में, प्रेजेंट और फ्यूचर, कहाँ पर? तो आइडियली ऑब्वियसली थोड़ा फ्यूचर में लेके जाती है या आपको सोशलाइजिंग या मी टाइम, कौन सा प्रायोरिटाइज करेंगे आप? मुझे दोनों पसंद है। So every day I just follow the energy. If my ask is today to socializing, if no one is there, I just take my phone and I just call and I just started to talk. Yeah, यस। इज इट एप्पल और समोसा? samosa. Apple मुझे दैट नहीं इज फ्राइड फूड। पसंद। हार गए। नहीं, आपने एप्पल चॉइस किया ना, इसलिए आपने दूसरा कुछ चॉइस किया होता तो मैं फ्राइड फूड नहीं बोलती, पर एप्पल मुझे खुद को पसंद नहीं है पसंद नहीं है, ओके। इसलिए। आप केक और समोसा बोले होते तो मैं केक चूज करती जी वैसे। जी जी, आई गेट दैट। Dear ma'am, as you are a great cook, you said, sometimes we order food from outside. तो आपके साथ कैसा कि भाई home cooked food more और food ordered from outside? So depends. Ideally, I love to have the home food, but कभी कभार अभी बच्चे की in case कोई wish है तो I always respect his wish. What a lovely mother you are. That's really nice. I love that. Yes, you have to respect the child's wish sometimes. You know, the way you said that, I have to respect my child's wish sometimes. हमेशा ना नहीं बोलना, कभी कभी उनके भी इच्छा रिस्पेक्ट Yes. करनी हमें कोई ना बोलता है तो कैसा लगता है। है? वेरी ट्रू। जब मुझे कोई आइसक्रीम के लिए ना बोलता है, जी obviously I feel that energy. जी। Yes. Dear ma'am, are you a beach person or a forest person? Beach. So that's why you asked me, let this be, don't remove it out, right? Yes, I Even get the you. water, blue color, beach, everything is in that. Even the greenery, I like greenery. Yeah. Yes. Singing, dancing, what would you prioritize? Both. Wow, great. Is it walking, two-wheeler or a four-wheeler? I love everything, like depends on the ask and situation. Is it reading और म्यूजिक? अगर एक टेबल है, अच्छी सी बुक भी है, आपका पसंदीदा बुक है वहां पर, और अच्छी सी म्यूजिक सिस्टम भी है, तो बस एक ही चुनना है, क्या चुनेंगे मैम? एक ही चुनना है, बिकॉज मैं तो मल्टीटास्क में दोनों कर सकती हूँ हाँ, वैसे। वाह। क्योंकि मेरा चाइल्ड बचपन से मेरी पढ़ाई ऐसे ही हुई है, इवन दो म्यूजिक नहीं बजता है तो आई कांट एबल टू रीड। Yes, dear. So सो multitask, I take both. I really हाँ, love the way you put that. ऐसे झट से आ गए आंसर। I will do take both. Yes, dear. Dear मैम, आपको गिफ्ट देना पसंद करते या गिफ्ट्स आपको मिलनी आपको अच्छी लगती है? देने में अच्छा लगता, यू सेड गिवर है ना आप, तो आप नाउ वी कम टू गिफ्ट्स। नाउ डू यू थिंक यू लव टू गिव गिफ्ट्स और गेट गिफ्ट्स और बोथ? बोथ बोल सकती हूँ कि मुझे दोनों पसंद है, बट एक्चुअल चॉइस में बोलूँ ना तो मुझे देना होता है, पर लेना जब होता है ना तब ऐसे चॉइस आ जाती है, अरे यार ये ऐसा नहीं तो ऐसा होता तो अच्छा है। सो कभी कभार तब थोड़ी चॉइस में ऐसा हो जाता है, बाकी मुझे पसंद दोनों है। जी जी। Yes. मैम, आज बिफोर वी एंड द सेशन, मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे लिए 3 गिफ्ट देंगे अभी? Yes. Yes, we like 3 gifts from you and they are called as the magical words. Apart from please, जो आप शुरुआत में भी शेयर करे थे, प्लीज, सॉरी, थैंक यू को अलग से रख के कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यू कैन गिव एनी अदर 3 गिफ्ट्स टू अस। ओके। यानी ये 3 नहीं बोलना है। जी जी और अच्छा, अभी मुझे तो फ्रेम करना पड़ेगा ना इससे पहले। जी। ओके। Gratitude, lots of love, lots of respect to you for inviting me here in this beautiful space. And I love this space कि जहाँ पे आपके जितने भी सवाल है
सो इट इज मे बी जितने भी कॉल्स इसके अंदर भी होंगे आपके, वो शायद किसी की जर्नी किसी के साथ कनेक्ट होती होगी, और जब आप अपनी जर्नी किसी के साथ कनेक्ट होते देखते हो ना, देन यू फील लाइट, ओके आई एम नॉट अलोन, समवन इज आल्सो देयर। और किसी की ज्यादा होती है, देन अगेन द सिंपैथी कम, और वो लाइटनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है कि यस आई एम नॉट अलोन। और जब किसी की हमारे से कम होती है, तब हमें लगता है कि यार हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जहाँ पे हम ये स्टेज में भी आ सकते हैं। इफ समवन इज डूइंग इन दिस, इतना कम है फिर भी वो एफर्ट डाल रहा है, तो मुझे तो एफर्ट डालना ही चाहिए। सो आई लव द वे यू डूइंग द एंटायर जर्नी किसी की। और इनकेस पीपल, मोर एंड मोर पीपल, आई विश कि ये देखे सबकी जर्नी और अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं उसमें ईज क्रिएट करे। यस, So sweet of you, ma'am. Thank you very, very much for speaking so nicely, sharing your thoughts on that. Thank you very much. It means a lot. It थैंक means यू। a lot. यस, Yes, dear. Thank you, dear. So, dear friends, ma'am has shared 3 beautiful magical words for us. That is gratitude, love, and respect. With this, you can conquer the world and create a beautiful world for you, your small world, and of course, share it with the universe. Dear ma'am, we love you for who you are. And thank you very much for all the positive energy. I had a beautiful time interviewing you, getting to know you, your thoughts, the work that you do. And I would love that many of them connect with you, because there are people suffering with a lot of emotional disturbances within. So aapke saath connect ho jaye, so definitely they will feel free. They will feel relieved. Yes, dear. यस, यस, डेफिनेटली। Yes, ma'am. Ma'am, would you like to share your number or anything that they would contact you, or we'll put it up in Yes, the description? yes, I can share with you. Okay, I can Yes, share with yes, you, or yes. right now I You just can say. share right now as well. We'll put it in the description, dear. Okay, so I can share my social media links to you. They can go to the social media and DM me anytime. I am even though Instagram DM करेंगे, तो I can definitely connect to them and reply to them. Yeah, so you can just send the handles of Instagram, YouTube channel, and I am also on the FB, but more active on the Instagram. Yeah. Yes, dear. Thank you, ma'am, for your time. Thank you for the effort, and thank you for the love and positive energy. Dhanyavad. Thank you. Thank you. Thank you so much, and thank you everyone for listening entire things. And I hope you will get something with this call. And also, just one line I just use feel कि आपको मुझे बोलना है. Just emotion खराब नहीं है. Just acknowledge that we are very much lucky कि as a human being we have emotions. So just acknowledge your emotion, change your emotions, and change your reality. Thank you so much. Beautiful. Thank you, ma'am. Thank you very much, my dear friends. Change your emotions, control your emotions, and have a beautiful life. It will really make your life worth living in this world. Yes, dear. Change your reality, as madam said, right? Change your emotions. And Change your focus on- reality. change your reality. Focus on positive emotions. You have a beautiful life ahead. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you. Thank you. My dear friends, with this, we'd like to end the International Fab Talks for now. We'd like to sign off from this beautiful platform and connect with you very soon in the next episode. And my dear friends, trust me, we are going to invite Dr. Meghavi Shah once again to share more knowledge on this platform, because she's a hidden gem. Yes, dear friends. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye.